شکریہ صاحبہ اور ہمارا احتساب ہو گیا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن حاجی گور صاحب اور تمام ہمارے قابل محترمہ زہرا زاہدہ صاحبہ اور معزز مقررین مہمانان گرامی اور شرکائے مجلس السلام علیکم۔ اس اہم سیمینار میں خوش آمدید صرف خوبصورتی تک محدود نہیں بلکہ یہی وجہ ہے کہ آج کی موجودگی سے ہمیں ہیومن رائٹ سیشن میں کی نمائندگی کا خریداری کے لیے خدمات قابل ستائش ہیں۔ میں علی ناصر صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کی۔ ہم نے اپنے تمام موجود مہمان موجود اسپیکر مقررین اور شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس سیمینار کی اہمیت اور وقار کو اضافہ کیا۔ خاص طور پہ میں فری طور پہ نہایت مشہور لوگ حاجی گور صاحب کا انہوں نے انتہائی قیمتی ہمیں دیا، بڑی مصروفیت کے باوجود اللہ آپ کو عزت دے بخشے۔ آج کے سیمینار کی نمایاں موضوعات درج ذیل ہیں۔ پاکستانی اسکن کیئر مارکیٹ رجحانات و وسائل، اسکن کیئر لیبل کی سائنسی و قانونی تفصیل، صارفین کے حقوق اور آگاہی کی موجودہ کیفیت، درآمدات کا انحصار و مقابلہ مقامی پیداوار چیلنجز، اسکن کلینز بیوٹی سروسز ریگولیٹری دائرہ کار انفلوئنس اور گمراہ کن معلومات۔ کیونکہ وقت کا بہت ساری کافی شکایت تو میرے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ لوگ کیجیے۔ بہت شکریہ، آسان and welcome everybody, our distinguished speakers and our audience and all the VIP personalities and people of us. Thank you all for joining us at today's seminar, The Beauty Breakdown, Market Trends and Consumer Rights. Our first speakers, thank you so much. Thank you so much for having me over here. Bismillahirrahmanirrahim, and thank you Federation House, the parliamentarians and the VPs who are joining us later over here, and the distinguished guests, including the central body and the convening panel, and encouragement and organization, former charitable campaigns. So please come join us. جناب انتہائی محترم جیلانی صاحب، میڈم زہرا صاحبہ، علی صاحب، جاوید اقبال صاحب، تمام خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے خیال سے پروگرام جلدی شروع کرنا پڑا کیونکہ غالباً یہ منسٹر کا انتظار کرنا تھا چیف گیسٹ کا۔ میں تو گیسٹ آف آنر تھا، چیف گیسٹ جو تو یقیناً منسٹر صاحب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈم زہرا نے اور جیلانی صاحب نے گیسٹ آف آنر ہی کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کا آغاز کر دیا، کیونکہ میری اپنی کچھ آج کل مصروفیات زیادہ ہوئی ہیں۔ جب سے میں نے کراچی والوں کے لیے ایئر کراچی کے نام سے میں نے ایئر لائن لانچ کی ہے، اس حوالے سے میری مصروفیات آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کبھی میں دبئی ہوتا ہوں، کبھی میں کسی ملک میں ہوتا ہوں، تو میں ایئر کرافٹ کے سلسلے میں آج کل میری میٹنگز کچھ زیادہ چل رہی ہیں، تو یہاں بھی میری آور ٹو آور میٹنگز میرے آفس میں بھی ہوتی ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ آج کل باہر سے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ الحمدللہ جب ہم نے اسے اناؤنس کیا تھا کراچی پریس کلب میں، تو بہت سے لوگوں کے شکوک و شبہات تھے کہ اس قسم کی تو بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی آ کے باتیں کی ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے
हमारी कोशिशों से आज जो मेन जो फोकस चीज़ है बिजनेसमैन, और हमने हर कराची के बिजनेसमैन को ऑफर किया कि आप हमारे साथ ज्वाइन एंड कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर होल्डर बन सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ कि अगले 3-4 माह बाद आप लोग अपनी एयरलाइन में कराची से सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। और मैं मैडम ज़ारा को राजा तहसीन पेश करूँगा कि उनकी काविशों से नज़र रखें और उनके खिलाफ एक्शन लें, और अगर उनको एक्शन लेने में कोई मसाइल पेश हों तो जिस जगह पे आज ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं आज एज अ एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हूँ। मैं सिटिंग प्रेसिडेंट का एडवाइज़र हूँ FPCCI का, मैं फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ FPCCI का। तो मैं आपकी ऑफर करता हूँ कि अगर आपको किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करानी हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो जो इलीगल काम कर रहे हो, तो आप उस इलीगल काम के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। मुझे खुशी उस वक्त ज़्यादा होगी जब ये प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में बनेंगी। तो मेरी आज तमाम जो बिजनेस लीडर्स ख़वातीन यहाँ अपने खुद ब्रांड को डेवलप करें ताकि लोग उस पर फख्र महसूस करें। तो मैंने पाकिस्तान के ब्रांड को इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और हम पाकिस्तान की बात करने के बाद अगर हम कराची को माइनस करें तो मैं समझता हूँ कि कराची के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। साबिर साहब, आज का इवेंट यकीनन जिलानी साहब ने और ज़ारा मैडम ने जो आज ऑर्गेनाइज़ किया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में, मैं समझता हूँ इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए, अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। आज का जो सेमिनार है बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेमिनार था, और आज देखा आपने कि जब जहाँ तक ब्यूटी की जब बात आती है तो वहाँ पर ख़वातीन की तादाद हमेशा बढ़ जाती है। तो आज भी आपने देखा कि पंडाल जो है तो ख़वातीन की तादाद से ज़्यादा भरा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एहसन कदम है ये कि अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हर इंसान होता है, चाहे आज का वो मर्द हो चाहे वो जो है तो खातून हो, तो ये जिस तरह मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, अगर यही कोशिशें करके हम अपने लोकल ब्रांड्स बनाने जाएं तो हमारे यहाँ पर जो आपकी जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं वो भी ख़त्म होते जाएंगे। और अगर हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को इस्तेमाल करें, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का इशू है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं है, और अगर हम दूसरे ब्रांड्स लेते हैं तो यकीनन उस इंपोर्ट्स करने के लिए हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यकीनन डॉलर्स के पाकिस्तान में इस वक्त इशू हैं। अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्ट लोकल रुपीस के हिसाब से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत होगी, क्योंकि ये नेशनल ज़रूरत है, हर औरत की ज़रूरत है, हर मर्द की ज़रूरत है कि वो इस ब्यूटी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। मर्द जो है तो आप देखें कम से कम और कुछ ना हो तो शेव के बाद जो है तो कोई ना कोई क्रीम ज़रूर लगाते हैं, तो यकीनन वो भी आपकी ब्यूटी में आती है। तो सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं आज की इवेंट के तमाम ऑर्गेनाइज़र को मैं अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो भी जितने भी इवेंट्स हैं या सेमिनार्स हैं वो कंटिन्यूटी में रहने चाहिए, और हम इंशाअल्लाह ताला एज अ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन्हें आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे। साबिर साहब देखें कि एयर कराची जो हमने बनाया कि कराची के लोग पिसे हुए थे काफ़ी अरसे से, कोई ऐसी चीज़ कराची के लोगों के पास नहीं है कि जो उनको खुशी दे सके। मैं समझता ये हूँ कि हमने ये सोचा कि इस मुल्क के लिए क्या करें। तो जब मुल्क की बात हम करते हैं, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा कि जब तक मुल्क में कराची का नाम ना लिया जाए तो मुल्क अधूरा होता है, तो हमने एयर कराची इस वजह से लॉन्च की कि एक तो हम पाकिस्तान के लोग अपनी एयरलाइन बनाएं जिस तरह से एयर सियाल ने अपनी एयरलाइन बनाई, और दूसरी कि जब कराची में इतने जीनियस लोग हैं तो हम कराची के लोग क्यों नहीं कर सकते। तो हमने ये मैसेज देना था पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मैसेज में हम कामयाब हुए। जिस तरह मैंने प्रेस क्लब में अनाउंस किया था उसके फ़ौरी बाद विद इन अ फ्यू डेज़ जो हमारा कंसोशियम बनना था 5 बिलियन का, अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ौरी तौर पे बन गया, जिसमें कराची के जो बड़े नाम हैं वो सारे के सारे हमारे साथ शरीक हुए, जिसमें कि अकील डैडी साहब हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, डालडा वाले बशीर जान मोहम्मद साहब हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब हैं FPCCI, फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हैं, इम्तियाज़ स्टोर वाले इम्तियाज़ अब्बासी साहब हैं, यूनिवर्सल ब्रदर्स वाले जो हज सबसे बड़ा ग्रुप जाता है फुरकान साहब हैं, हमारे साथ उमरसन है लाल किला वाले और कॉस्मोस ट्रैवल वाले, खालिद तवाब साहब हैं, मज़हर अली नासिर साहब हैं। ऐसे कराची के जितने बड़े नाम हैं वो सारे के सारे हमारे से जुड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कंसोशियम फ़ाइनल किया, और फ़ाइनल करने के बाद
ہم نے اپنا لائسنس لے لیا ہے جو RPT لائسنس ہوتا ہے. ابھی ہماری سیکورٹی کلیئرنس آج کل چل رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ چند دن میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اب ہماری AOC آخری ایک ڈاکومنٹ رہتا ہے, AOC ایئر آپریشن سرٹیفکیٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں جہازوں کا ہونا ضروری ہے. باقی ہم پریکیورمنٹ اور جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں ہم لوگ HODs کی وہ ہم کر چکے ہیں ساری کی ساری. AOC کے ڈاکومنٹیشن ہماری کمپلیٹ الحمدللہ ہو چکی ہیں. میں جس طرح سے آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ میں دبئی گیا تھا, بالکل میں ایئر بس گیا تھا, اپنی ٹیم کے ساتھ گیا تھا. میرے ساتھ جو میرے چیف ایگزیکٹو ہیں ایئر وائس مارشل عمران ماجد صاحب, وہ بھی میرے ساتھ تھے. خرم سالار صاحب جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے, جو پہلے کنٹری ہیڈ تھے قطر ایئر ویز کے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہمیں جوائن ان کیا ایئر کراچی کے اندر. اسی طرح جو IT ٹیم کے ہمارے ہیڈ تھے فاروق صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہم نے کچھ IT کے کام ہم نے جا کے کمپلیٹ کیا ابھی دبئی میں, اور ہماری بہت ساری میٹنگز ایئر کرافٹس کے حوالے سے ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میٹنگ ہوئی ہے چند دن میں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گی. اور ہمیں جو انیشل 3 ایئر کرافٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں بہت جلد مل جائیں گے. جیسے ہی ہمارا ایگریمنٹ ہوگا تو ہمارے AOC کا پروسیس پورا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ AOC پہ چلے جائیں گے. اور اگلے 2-4 مہینے میں انشاءاللہ AOC ملنے کے بعد ہم اپنے آپریشن کو سٹارٹ کر sکیں گے. Their products to good mouth about them, but unfortunately, they usually do not give you the honest review. As a consumer, it's very difficult for you to understand which is the honest review and which is not. Mostly buyers are deceived by glowing recommendations because we usually follow our influencers. This seminar is not just about skincare, it's about consumer rights, ethical business practices, and public health. Academia to explore how market trends can align with the human values. We speak of beauty, let it not be confined to external appearance. بیوٹی انڈسٹری ہے, اس کے اندر ابھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص کر ہمارے اپنے لوکل ملک کے اندر پاکستان میں زیادہ تر لوگ اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ بھی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا انڈسٹری لیول پہ آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جس کے اندر ہینڈل آ رہی ہے, چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے بیٹھیں کہ جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں, اور آپ اور شوکت جیلانی صاحب اور جتنے بھی ہمیں معزز ڈیلیگیٹ بھی آئے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. کسی طرح سے بھی کوئی بھی مشکلات درپیش ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مشکلات کا حل کرنے کے لیے جو اسکن کیئر لیبل ہوتا ہے دیٹس بیسیکلی اے گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس جو بیوٹی پروڈکٹ ہے یا جو پروڈکٹ ہے اسکن کیئر لیبل ہے اس میں ہے کیا چیز ہے. یہاں پہ پروگرام ہے, اس کو انکریج کرنا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی. زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام کرے جس میں جنرل پبلک کو اور عوام کو, جو کیونکہ یہ 52% اب خواتین ہماری مور دین 50% ہے, تو ان کو اویئرنیس سیشن دینا ضروری ہے. ہمارے یہاں دیکھیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے, لیکن اویئرنیس دینا اور بار بار ان کو بتانا یہ ضروری ہے, کیونکہ مارکیٹ میں فیک لیبل, فیک آئٹم اتنے آ گئے ہیں, کوئی ایسی اتھارٹی اس طرح سے نہیں اس کو کنٹرول کر پاتی. تو اس طرح مارکیٹ میں اتنی فیک آئٹم آ رہا ہے, اور اس کا یوزز کیا ہے. دیکھیں ہم جو اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ انگریڈینٹ ہیں یا نہیں ہے اس آئٹم کے اندر. اور ظاہر بات ہے اسکن انڈسٹری جیسے پہلے بناؤ سجاؤ بناؤ سنگار ایک وہ ہوتا تھا, لیکن اب یہ ایک بہت بڑی ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے,
इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसमें काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और देखें, ख़वातीन को काफ़ी जगहों पर फेक चीज़ों का और वैसे ह्यूमन हरासमेंट का भी मसला है। वर्क प्लेस पे काफ़ी हरासमेंट और डिफरेंट तरह से ह्यूमन राइट का भी इश्यूज़ है और कंज्यूमर राइट का भी। कंज्यूमर राइट के अंदर उसका वो चीज़ उसे मिलनी चाहिए जिसके वो पैसे दे रहा है। मार्केट्स में हम मैं चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ कोलैबोरेशन करे FPCI का, और हम इसका इंशाल्लाह जो नेगेटिव आइटम है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनका सदेबाप करके ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह इसका अवेयरनेस सेमिनार कर सके। मैं कन्वीनर ज़हरा जाहिद हूँ, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कन्वीनर हूँ। वुमेन्स हेल्थ ब्यूटी एंड स्किन केयर और जी ब्यूटी मेरा ब्रांड है और TV एंकर भी हूँ, इस तरह से। जी, आज का इवेंट हमारा बड़ा अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा और आज चीफ मिनिस्टर असिस्टेंट भी आए हुए थे, राजवीर सिंह सोडा साहब। उसके अलावा बहुत सारे VIPs थे आए हुए चैनल्स के, हनीफ गोवर साहब थे, इसके अलावा VPs थे हमारे सारे आए हुए, अमन पराचा साहब जिन्होंने सबको शील्ड्स दी एंड वाइस वर्सा। तो इट वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा सेमिनार था, बड़ा इंफॉर्मेटिव था। डॉक्टर्स आई हुई थी, फिजिशियंस और एस्थेटिशियंस आई हुई थी जिन्होंने बहुत कुछ लेक्चर दिए और बहुत बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम फवाद है और मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ शी ट्रेड डेवलपमेंट FPCCI एज वेल। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कायद आज़म हाउस और बहुत सारे और शोबों से मुंसलिक हूँ। यहाँ पर आज आने का जो मौका मिला और जो एक बहुत अच्छा एक इवेंट था, यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया जो कि शौकत जिलानी साहब ने किया। उसमें प्रोडक्ट की जो आगे किसके तरीके कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कंज्यूमिंग के बारे में बताया गया। प्रोडक्ट कंजम्पशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बट जब हम चीज़ लेते हैं तो हमें यही नहीं मालूम होता उसमें कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं। स्किन केयर के बारे में बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे और प्रोडक्ट पाकिस्तानी इस्तेमाल करने की बात की, क्योंकि हमारी पिगमेंटेशन यहाँ पाकिस्तानी माहौल के मुताबिक है। इन माहौलियात की चेंजेस और उसकी वजह से हमें वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे इलाके में ज़्यादा बेहतर हो। ये रुतबा भी मुझे इनकी वजह से मिला है। इनके इंस्टीट्यूट में आने के बाद मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई ना, और मैं चाहती हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी और फीमेल्स को भी मिले जैसे मुझे मिला है, जैसे मैंने अचीवमेंट किए। अचीवमेंट ये है मेरी कि मैं ख़ुद अपने घर की कफ़ालत करती हूँ। अब स्पेशल असिस्टेंट टू CM राजवीर सिंह यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। मेरे को बुलाया गया था और मेरा यहाँ पे आने का मकसद ही ये था कि सिंध गवर्नमेंट और जो मेरे पास डिपार्टमेंट है ह्यूमन राइट्स का, उसकी तरफ से मैं सपोर्ट करूँ। ये हमारी जो लेडीज़ ख़वातीन किसी भी शोबे में जो अपना काम करना चाहती हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, तो इनको अश्योरेंस हम दें कि कहीं पे भी आप डिफ़िकल्टी महसूस करें तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, मेरे CM सिंध के आज जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोग्राम ब्यूटिशियन के हवाले से, बड़ा अवेयरनेस वाला और बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। उससे ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन हो गई या मर्द हज़रात हो गए, उनको बड़ी अवेयरनेस मिलती है, क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है जो हम अपने फेस पे करते हैं और फेस सबसे बड़ा डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीन आवान, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और ऑर्गेनाइज़र भी हूँ। मेरा एक PACC में फ़ैशन शो होने जा रहा है। फ़ैशन शो भी है और कल्चर शो भी है, तो आप सब लोग आएँ वहाँ पे देखें 31 मई को, ठीक है। आज का इवेंट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। न्यू टैलेंट को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन्होंने यहाँ पे इनवाइट कर। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।